السلام علیکم۔ موسم گرما ٹیوبویل میں نہانے، آم کھانے اور پسینہ بہانے کا موسم ہے۔ جیسے جیسے ہیٹ انڈیکس چڑھتا جاتا ہے، ہمارا جسم ہمیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہوتا ہے۔ پسینہ آنا جسم کا درجہ حرارت کو مینٹین رکھنے کا ایک نیچرل طریقہ ہے۔ جب ہم گرم ہوتے ہیں تو ہمیں پسینہ آتا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہائپوتھیلمس کہلاتا ہے، جو کہ جلد میں موجود نروز کے ذریعے پسینے کی غدود کو آرڈر کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پسینہ بنائیں۔ یہ پسینہ اور اس کی نمی پھر بخارات بن کر ہمیں ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ پسینہ آنا ہماری باڈی کا ایک نیچرل رد عمل ہے جو کہ ہمیں ٹھنڈا کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے، چاہے وہ سال کے کسی بھی وقت میں ہو، گرمیوں میں ہو یا سردی میں، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بھاری پسینہ آنا ان کے لیے ایک حقیقی اور شرمناک مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو بہت امبیرسنگ محسوس کرتے ہیں۔ بھاری پسینہ آنا، جسے انگلش میں ہائپر ہائیڈروسس کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس سے جان چھڑوانے کا طریقہ بتائیں، تھوڑا سا آپ جان لیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ جب ہمارا دماغ یا ہماری نروز گرمی یا جسمانی ایکٹیویٹیز کے ایبسنس میں ہی پسینے کے غدود کو سگنل مسلسل بھیجتے رہتے ہیں کہ پسینے کے غدود پسینہ بناتے رہیں، تو اس کنڈیشن کو ہائپر ہائیڈروسس کہا جاتا ہے۔ پسینے کے غدود ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، مسلسل پسینہ بناتے رہتے ہیں، جبکہ جسم میں اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں میں یہ ہیریڈیٹری بھی ہو سکتا ہے، یعنی خاندان میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ سب کو ہی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اس حالت کا سبب بننے والی صحیح جین کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کچھ میڈیکل کنڈیشن بھی بہت زیادہ پسینہ آنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہارٹ ڈیزیزز ہیں، مینوپاز میں ایسا ہو سکتا ہے، فالج، ہائپر تھائرائیڈزم، جنرلائزڈ اینگزائٹی، آٹو امیون ڈیزیزز، آٹو نیوروپیتھی، HIV ایڈز، ہاجکن ڈیزیزز، بلڈ کینسر، سرنگومائلیا، الکوہل وڈرال یا پھر چرس، کوکین یا اوپیوائڈ کا وڈرال، اور نان ہاجکن لیمفوماز۔ یہ تمام ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کو زیادہ پسینہ آ سکتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا کئی دوائیوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ ان دوائیوں میں شامل ہیں اینٹی ڈپریسنٹ، ڈائبٹیز کی دوائیاں، ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز۔ تو یہ تو تھیں کچھ سیکنڈری کازز جن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، مگر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بغیر کسی وجہ کے زیادہ پسینہ آتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس کو پرائمری ہائپر ہائیڈروسس کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی طبی وجہ کے یا کسی اور وجہ کے غیر معمولی پسینہ آنا بنیادی ہائپر ہائیڈروسس یا پرائمری ہائپر ہائیڈروسس کہلاتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں یا تمام حصوں میں زیادہ پسینہ آنے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے آرم پیٹس میں، آپ کے چہرے پہ، آپ کی ہتھیلیوں میں زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، پاؤں کے تلووں میں یا سینے کے نیچے کے حصے میں زیادہ پسینہ آنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ پرائمری ہائپر ہائیڈروسس عام طور پر زیادہ ہارمونل امبیلنس کے ساتھ بھی لنک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مینوپاز کے دوران، پیوبرٹی کے دوران یا پھر حمل کے دوران بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، وزن کا بڑھنا، تھکاوٹ، سردی یا گرمی میں زیادہ حساسیت کا اضافہ ہو جانا، خشک جلد، ذیابیطس۔ یہ جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں یہ آپ کو پسینہ آنے کے ساتھ ساتھ دیگر علامات بھی پیدا کریں گی، مگر ہم اس ویڈیو میں پرائمری ہائپر ہائیڈروسس کی بات کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ اپنے پسینے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے اینٹی پرسپرنٹ کے بارے میں۔ اینٹی پرسپرنٹس کا آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ پسینے کی نالیوں کو روک کر کام کرتے ہیں۔ پسینہ ہماری جلد کی سطح تک نہیں پہنچ پاتا، پسینہ غدود کے اندر بند تو رہا ہوتا ہے لیکن اسکن سرفیس پر نہیں آ پاتا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے ڈیوڈرنٹس۔ ڈیوڈرنٹس پسینے کو روکتے نہیں ہیں، پسینے کو کم نہیں کرتے، وہ صرف پسینے کی اسمیل کو ختم کرتے ہیں جو کہ پسینے میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اینٹی پرسپرنٹس میں ڈیوڈرنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن جو خالی ڈیوڈرنٹس ہوتے ہیں ان سے پسینہ کم نہیں ہوتا، ان سے صرف آپ کے پسینے کی اسمیل کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو ڈرگ سٹورز پہ اینٹی پرسپرنٹس پائے جاتے ہیں وہ میٹالک سالٹ ایلومینیم کلورو ہائیڈریٹ کے بنے ہوتے ہیں، وہی ایکٹیو ایجنٹ ہوتا ہے۔ اینٹی پرسپرنٹ کے بہترین نتائج کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی آرم پیڈ ڈرائی اور صاف ہوں، اور پھر اس کو رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود اجزاء کو پسینے کی نالی کو بلاک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو رات کو کم پسینہ آتا ہے اور ان ایکٹیو انگریڈینٹس کو اپنا کام پرفارم کرنے کا صحیح ٹائم مل جاتا ہے۔ یہ اینٹی پرسپرنٹ کا استعمال فوری طور پر افیکٹو نہیں ہوتا، چند راتوں تک اس کا معمول بنانا پڑتا ہے، تب آپ کو اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں۔
जब ये आपको लगे कि असर दिखाने लग गए हैं, फिर आप इनको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि हवादार और वेंटिलेटेड कपड़े पहने। जी हाँ, लिबास की सिलेक्शन में ऐसे कपड़े पहने जो सूती हों, जिनसे हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो सकती। हल्के रंग के कपड़े भी सूरज को जज्ब करने की बजाय उसको रिफ्लेक्ट करने में मदद देते हैं, इसलिए सफेद रंग पहनने से आपको ठंडक का एहसास मिलता है और पसीना गम करने में भी मदद हासिल होती है। ऐसा पॉसिबल ना हो और आपको डार्क कलर्स पहनने ही पड़े तो फिर ऐसे कपड़े पहने जिन पे कुछ डिजाइन वगैरह बने हो, ताकि आपके पसीने के निशानात उन पे वाजे ना हो। बाज खानों से परहेज करें। खाने के चंद ऐसे इंतखाब हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी में हैं या कारोबारी लंच पे हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिनसे ज्यादा पसीना आ सकता है। मिसाल के तौर पे मसालेदार चीजें। हमारा जिस्म मसाले के खिलाफ ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि हीट के खिलाफ, क्योंकि मसाला जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए हमारी बॉडी वही रिएक्शन एक्टिवेट करती है जो कि हीट के अगेंस्ट एक्टिव होता है, और इसी वजह से पसीना आ जाता है। कैफीन भी इस्तेमाल करने से मना किया गया है। ये हमारे अंदर हथेलियों, पैरों और आर्म पेट्स में पसीना लाती है। गर्मी में पसीने से बचने का एक और तरीका ये है कि हैवी खाना ना खाएं। जब भी आप हैवी मील लेंगे तो आपको ज्यादा पसीना आएगा, क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हीट प्रोड्यूस करती है और हीट के रिस्पॉन्स में पसीना बनता है। पानी ज्यादा पिएं ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे। अगली टिप कॉमन सेंस की बात है कि जो पसीना है वो हमारी बॉडी में हीट का रिएक्शन है, तो आप बॉडी को हीट अप होने से ही बचाएं, उसको ठंडा रखें तो पसीना नहीं आएगा। अगर आपके पास एसी और कूलर की सहूलत मौजूद नहीं है तो पंखे के नीचे एक बाउल में आइस भर के रख दें। उससे भी ठंडी हवा पंखे की हवा के थ्रू सर्कुलेट करती रहेगी और आपके सराउंडिंग में कूल एयर रहेगी। उसके अलावा कमरों में पर्दों का इस्तेमाल करें। गाड़ी में जाते हुए शेड्स का इस्तेमाल करें। हमारी दूसरी वीडियो में जैसा कि हमने बताया, हॉट समर वेदर में बाहर जाना बहुत जरूरी है, तो ठंडे पानी में भीगे हुए टॉवल का इस्तेमाल करें। कैप, सन ग्लासेस, सन ब्लॉक और अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। अगर ये सब करने के बावजूद आपको ज्यादा पसीना आता है और आप जानते हैं ये नॉर्मल नहीं है, आपको प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस लग रहा है, तो इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे इलाज की ऑप्शन मौजूद है। उन्हीं इलाज के बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स एंड वाइप्स। इन क्रीम्स में मौजूद ग्लाइकोपाइरोलेट चेहरे और सर पे आने वाले पसीने को कम करता है। ग्लाइकोपाइरोनियम टॉसिलेट क्यूब्रेक्सा में भिगोए हुए वाइप्स आपके हाथों, पैरों और अंडर आर्म्स की अलामात को कम करता है। इनके कुछ मुमकिन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें शामिल है स्किन इरिटेशन या मुंह का खुश्क हो जाना। नर्व ब्लॉकिंग मेडिकेशन, ये वाली गोलियां उसी हुक्म को रोकती हैं जो हाइपोथैलेमस के जरिए स्वेट ग्लैंड्स यानी के पसीने के गुदूदों को जा रहे थे। इसकी वजह से ये सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं और पसीना बनना कम हो जाता है। इसमें भी साइड इफेक्ट जो आ सकते हैं थोड़े से, वो ड्राई माउथ है कि आपको धुंधलाहट आ सकती है देखने में, या फिर कुछ छोटे पेशाब के मसाइल आपको देखने पड़ सकते हैं। अगली ऑप्शन है बोट्यूलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन, बोटॉक्स इंजेक्शन। ये भी वही सिग्नल जो हाइपोथैलेमस से पसीने की गदूद को जा रहे होते हैं उन्हीं को ब्लॉक करती हैं। अगर आपको ज्यादा दर्द होता है तो इन इंजेक्शन के देने से आपकी स्किन को पहले सुन्न किया जा सकता है और फिर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। बहुत ही आसान एक क्लिनिकल प्रोसीजर है, आप ये भी लगवा सकते हैं। आपकी स्किन को सुन्न करने के लिए आपके डॉक्टर मुख्तलिफ लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन में आपके जिस्म के हर मुतासरा हिस्से को कई इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। नताइज देखने में कुछ दिन लग सकते हैं। असर को बरकरार रखने के लिए आपको मुमकिन तौर पर 6 माह बाद दोबारा इलाज की जरूरत भी पड़ सकती है। बोटॉक्स इंजेक्शन के पॉसिबल साइड इफेक्ट में शामिल है कि मसल वीकनेस हो सकती है उस एरिया की जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया है। ये तो थी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स जो अवेलेबल है हाइपरहाइड्रोसिस के लिए। आयोनोफोरेसिस, इस घरेलू इलाज में आप अपने हाथों या पैरों को पानी के एक पैन में भिगो देते हैं और उसमें एक आला जिसके जरिए माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट पानी से गुजरता है और वो आपके आसाब को ब्लॉक कर देता है। वही आसाब जो पसीने को मुतहर्रिक कर रहे थे। अगर आपके पास डॉक्टर का तजवीज करदा ये आला मौजूद है तो आप इसे अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मुतासरा जगह को 20 से 40 मिनट तक भिगोने की जरूरत होगी। इलाज को हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं जब तक कि आपकी अलामात बेहतर ना हो। आपके नताइज हासिल करने के बाद आप असर को बरकरार रखने के लिए इलाज को हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कम कर सकते हैं। अगर आप कोई साइड इफेक्ट फेस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से रुजू जरूर करें।
माइक्रोवेव थेरेपी। इस थेरेपी के साथ एक हैंड हेल्ड डिवाइस मीरा ड्राई आर्म पिट्स में पसीने के गदूद को तबाह करने के लिए माइक्रोवेव तवानाई का इस्तेमाल करती है। इलाज के लिए आपको 20 से 30 मिनट पर मुश्तमिल 2 सेशन करने पड़ते हैं, जिसमें 3 महीने का वक्फा दिया जाता है। के जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसमें शामिल है कि आपकी स्किन में कोई इरिटेशन हो सकती है या आपकी सेंसेशन स्किन की थोड़ी कम हो सकती है। ये अभी न्यू मेथड है, तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट इसके अभी अननोन है। एक ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड रिमूवल, पसीने की गदूद को ही निकलवा दे। अगर आपने हाइपर हाइड्रोसिस की बाकी सारी ट्रीटमेंट ट्राई कर ली है मगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर आप इस ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं। इसमें क्यूरेटाज एक सर्जरी का प्रोसीजर है, उसके थ्रू इन गदूद को उखेड़ा जाता है और फिर सक्शनिंग के थ्रू खींच लिया जाता है। इन 2 प्रोसीजर के कम्बिनेशन से सर्जन आपकी ये छोटी सी सर्जरी करके आपको पसीने से निजात दिलवा सकते हैं। अगली ऑप्शन है नर्व सर्जरी, क्योंकि इसमें नर्व्स को डैमेज किया जाता है और नर्व्स की सर्जरी की जाती है और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए इस तरीकाकार को उन लोगों के लिए ही बेस्ट समझा जाता है जो पिछले सारे तरीके ऑप्शंस यूज कर चुके हों और उनको कोई फायदा ना हुआ हो। सर्जरी के जो भी हमने आपको मेथड्स बताए हैं ये ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं या कुछ माइनर प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में भी किए जा सकते हैं। एट दी एंड आपको बताती चलूं कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ये सब कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट पर फोकस कर रहे हैं और इस पे काफी रिसर्चेस हो रही हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। खाने वाली अद्वियात पर काफी फोकस किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं खाने वाली दवाइयों के, इसलिए इनको अभी इस मकसद के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो नर्व सुन करने का तरीका है उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है, मगर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसका मशवरा हरगिज नहीं देते क्योंकि उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, इसलिए उस पर जाने से पहले आप पहले सारे तरीके आजमा लें। दरअसल ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हर एक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपेरिमेंट है जो दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है एक चीज आप पर इफेक्टिव हो और आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करें तो उस पे वो उस तरह से अमल ना करे। सो आप तमाम ऑप्शंस ट्राई करें। आई होप इंशाल्लाह कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और अपने डिजायर्ड इफेक्ट हासिल करने के लिए आप अपने डॉक्टर्स को अपने लूप में रख सकते हैं और उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये भी ज़हन में रखें कि तहकीक अभी भी जारी है और नए से नए इलाज और मौजूदा इलाज को इस्तेमाल करने के नए से नए तरीके दरियाफ्त हो रहे हैं। सो हमारे चैनल को देखते रहिए और हम आपको हर तरीके और हर ऑप्शन के बारे में अपडेट करते रहेंगे। एंड में आपसे एक ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी कि हम चाह रहे हैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं। जो व्यूअर्स जिस बीमारी से रिलेटेड मोटिवेशन चाहते हैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप में फिर हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिस्कस किया करेंगे और डायरेक्ट आपको डॉक्टर्स का मशवरा एट द स्पॉट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम गॉल ब्लैडर के पेशेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, वेट लॉस के पेशेंट का एक ग्रुप बना सकते हैं, बैक पेन के पेशेंट का एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप्स का फायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग अपना टाइम पर मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं किसी बीमारी में। तो जब आप एक जैसे सोशल ग्रुप में इकट्ठे एक दूसरे का साथ देंगे तो आपको उस बीमारी से लड़ने में बहुत फायदा होगा। आई होप आपको मेरी ये सजेशन और आइडिया पसंद आएगा और आने वाली वीडियोस में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। ग्रुप का लिंक उस बीमारी से रिलेटेड हर वीडियो के नीचे शेयर कर दिया जाएगा और इस तरह आप बआसानी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकेंगे अपनी बीमारी से रिलेटेड। कमेंट जरूर कीजिएगा इस आइडिया के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।